Hello, my dear students. Welcome to the Slate class of physics. In this class, we will continue with the simple harmonic motion and we will study the energies of an object moving with simple harmonic motion. Right? So, what energies are possessed by an object moving with simple harmonic motion? Because it is moving, it has kinetic energy, and at the extremes, kinetic energy is zero. So, which energy is possessed? That would be potential energy, and the sum of kinetic energy and potential energy will give you the value of total energy, right? So, we can write this equation as kinetic energy plus potential energy will give you the value of total energy of an object moving with simple harmonic motion, right? So what are the formulas that are pre-required for this? For example, we have one formula of velocity v equals plus minus omega whole under root of x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को गिवन मिलेगा. डाटा में ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन होता है. So we can use this formula to find out the value of kinetic energy of an object. How? The kinetic energy has an expression. हमें जो प्रीवियसली फॉर्मूला पता है काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, राइट? एंड वी नो दैट द एक्सप्रेशन ऑफ velocity is plus minus omega x naught square minus x square whole under root. So simply आप v की जगह v का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे. So you will get to know that the formula of kinetic energy is half m now plus minus omega under root of x naught square minus x square whole square, right? सो इस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं. मैं यहाँ पर मैथ्स लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर मैंने मैथ्स रीराइट कर दिया है. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट, और स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे. यू विल गेट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को अगर आप फर्दर देखें, सो काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी? काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट स्विफ्टली पास करेगा, जिस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एंड दैट पॉइंट इज मीन पोजीशन. सो लेट्स सी, आप लोग लिख रहे हैं एट मीन. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट मीन पोजीशन? At mean position, the value of displacement is 0. ठीक है. सो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में आप डिस्प्लेसमेंट की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, राइट? इसको आप सिंप्लीफाई करें, काइनेटिक एनर्जी विल कम आउट टू बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर x naught square, right? So this is the maximum value of kinetic energy, because mean position per kinetic energy is always maximum, because velocity is maximum at mean position, right? And keep this thing in mind that this energy is also equal to the total energy, because इस point पर maximum kinetic energy है और potential energy इस point पर 0 है. ठीक है. So here we have the formula of total energy as well. Half m omega square x naught square is the expression of total energy. Let's find out the minimum energy. Minimum kinetic energy के लिए आप लिखेंगे at extreme position the value of displacement is x naught. ठीक है. तो हम x की जगह अब x naught को सब्स्टिट्यूट करेंगे. Kinetic energy is equal to half m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, राइट? एक्स नॉट स्क्वायर और एक्स नॉट स्क्वायर जो है ये एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे. द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल कम आउट टू बी 0,
and in fact this is the minimum value of kinetic energy at extreme position. One reason is because at extreme position the value of velocity is zero. तो बच्चों अगर velocity zero है तो उस point पर kinetic energy भी zero होगी. And the second reason is that इस पॉइंट पर सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है, राइट? सो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द पेंडुलम बैक टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, right? So you got to know the formula of total energy. So we can write that total energy is equal to half m omega square x naught square. ठीक है? We have this expression for total energy. ठीक है? टोटल एनर्जी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. अब जरा एक इंपॉर्टेंट चीज को अंडरस्टैंड करें. हैव अ लुक एट द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तब होती है जब एक्स नॉट में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा होता, एक्स नॉट में से जीरो माइनस हो रहा होता है, एंड दैट हैपेंस एट राइट एट द मीन पोजीशन. बट जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होती है, इस x की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो इस x के इंक्रीज होने की वजह से एक मेजर चंक ऑफ एनर्जी माइनस होता है. इस वजह से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रिड्यूस होती जाती है. ठीक है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर यही x किसके इक्वल हो जाता है? दिस बिकम्स इक्वल टू x नॉट, और जब x नॉट सारा का सारा x नॉट में से माइनस होता है, यू गेट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज जीरो. ठीक है, सो let's try to find out the expression for potential energy. ठीक है, to find out the expression of potential energy, once again I'm writing down the formula of kinetic energy, which is kinetic energy is equal to half m omega square x naught square minus x square, right? Kinetic energy is equal to half m omega square x naught square minus half m omega square x square. So basically मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया है, and this looks something like this, right? Now I am rearranging this expression, so this will be written as half m omega square x naught square is equal to ek plus 1 by 2 m omega square x square. So you have to understand कि मैंने इस एक्सप्रेशन में क्या किया है. This is an expression for total energy ना. This is same as half m omega square x naught square. ठीक है, so this can be replaced by total energy. So total energy is equal to kinetic energy plus half m omega square x square, right? Now we will compare this equation with this general equation of energy, which is total energy is comparable with sum of kinetic energy plus sum of potential energy. ठीक है, सो इस पॉइंट पे आपको कंपैरिजन मेथड से पता चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, टोटल एनर्जी के इक्वल है, एंड बाय दिस कंपैरिजन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी हाफ m omega square x square. So here we have the formula of potential energy. Potential energy would be written as half m omega square x square. So this is the formula of potential energy. ठीक है, अब सारे के सारे फॉर्मूलाज मैं आपको दोबारा से लिख के दिखाता हूं. So the formula of kinetic energy was half m omega square x naught square minus x square. ठीक है, अब इसकी recognition देखें. अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा, दिस फॉर्मूला वुड बी रिटन एज हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर माइनस हाफ m
ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में बेसिकली टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी माइनस हो रही है, सो यू आर गेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। अच्छा, नाउ व्हाट हैपेंस एट मीन पोजीशन। बच्चों मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। सो बेसिकली आप इस x की जगह जीरो सब्सटीट्यूट करते हैं, तो इस एक्सप्रेशन में से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर में से कोई चीज माइनस नहीं हो रही होती, कोई चीज सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही होती। इस वजह से आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आती है, बिकॉज उसमें से कोई पोटेंशियल एनर्जी माइनस नहीं हो रही। उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो होती। ठीक है। बट व्हाट हैपेंस एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पर आपका x जो है दैट रीचेज x नॉट। ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या यू कैन कॉल इट एट एज एम्पलीट्यूड पर पहुंच जाता है। तो एम्पलीट्यूड वाली जब डिस्प्लेसमेंट माइनस होती है, ये दोनों एक्सप्रेशंस एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो आती है, और वैसे भी उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर आता है। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। ठीक है। अगर हम गौर से देखें तो ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये किस चीज का है। This first expression is an expression of total energy, और second expression किस चीज का है? This is potential energy. So basically kinetic energy is total energy minus potential energy. ठीक है। ये याद रखने की बड़ी अच्छी हिंट है कि expression of total energy would be half m omega square x naught square, and the expression of potential energy is equal to half m omega square x square. ठीक है। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। ठीक है। एंड दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। सो वी हैव ऑल दीज थ्री एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड potential energy, right? Now once again we have to look at the formula of total energy. So total energy is equal to half m omega square x naught square. ठीक है। Generally the value of half m omega square is constant. ठीक है। This is constant. So total energy is proportional to amplitude square, right? जितना ऑब्जेक्ट का ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसकी टोटल एनर्जी ज्यादा होगी। देखिए एयर रेजिस्टेंस से एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली रिड्यूस होता है, सो सम ऑफ इट्स एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन और द एयर रेजिस्टेंस, राइट? सो टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. You can use this proportionality to form this equation that total energy 1 divided by total energy 2 is equal to amplitude 1 square divided by amplitude 2 square. ठीक है। सो एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि सर्टन एम्पलीट्यूड पर टोटल एनर्जी की वैल्यू गिवन है, और जब टोटल एनर्जी रिड्यूस हो रही है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू एम्पलीट्यूड। ठीक है। सो बेसिकली आप इस प्रोपोर्शनैलिटी से वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। नाउ वी नीड टू प्लॉट द ग्राफ्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। हम एनर्जी के ग्राफ स्केच करेंगे। आप लोग हेडिंग लिख रहे हैं एनर्जीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनर्जीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट moving with simple harmonic motion. ठीक है। and we are going to plot energy displacement graphs. energy displacement graphs. तो हम एक ही ग्राफ के ऊपर ये सारी की सारी एनर्जीज को स्केच करेंगे। ठीक है। सो displacement axis is your x-axis, displacement is going to come along this x-axis. ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होगी और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होगी।
It means कि positive displacement means positive amplitude, amplitude towards right side of mean position, and negative amplitude means its position at the left side of mean position. So this is your y-axis and this belong to energies. इस एक्सिस के along एनर्जी आएगी, एनर्जी इन जूल्स, ठीक है, एनर्जी इन जूल्स ऑन वाई एक्सिस and displacement in meters along x-axis. So what is the maximum possible displacement? The maximum positive displacement is amplitude and that is referred as x naught, और दूसरी extreme पे this is referred as minus x naught. Right in the middle the value of amplitude would be 0. ठीक है? What is the maximum possible energy? The maximum possible energy is E total, ठीक है, which is in fact sum of kinetic energy and potential energy. तो यहां पर मैं कुछ guided lines draw कर रहा हूं, x नॉट के ऊपर डॉटेड लाइन, ठीक है, माइनस x नॉट के ऊपर डॉटेड लाइन. इट मीन्स कि आपका जो पेंडुलम या कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव कर रहा है वो एम्पलीट्यूड से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट पर नहीं जा रहा. इनफैक्ट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है. सो वन एनर्जी दैट विल रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट एम्पलीट्यूड इज टोटल एनर्जी. सो टोटल एनर्जी का ग्राफ स्केच करेंगे. The graph of total energy would be like this कि हर amplitude, हर displacement के ऊपर the value of total energy is constant, ठीक है. So I am labeling this as ET and T refers to total energy, ठीक है. Next is term of kinetic energy and potential energy, right? सो काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट करेंगे सबसे पहले और हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पर मैक्सिमम है. काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन बिकॉज पेंडुलम क्रॉसेस द मीन पोजीशन विद मैक्सिमम वेलोसिटी, सो इट पोजेस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. सो एट मीन पोजीशन द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी वुड बी मैक्सिमम एंड दैट वुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है. और एक्सट्रीम्स के ऊपर, एम्पलीट्यूड्स के ऊपर इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है. सो एट दिस पॉइंट आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ पैराबोलिक शेप बिकॉज काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन जो है दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो योर शेप ऑफ ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस. Let's label this line with EK. It means this graph belongs to kinetic energy, ठीक है. And the last energy which is remaining is referred as potential energy. Let's draw a graph of potential energy. The value of potential energy is 0 at mean position and potential energy is maximum at the extremes, right? So we have to draw a parabola once again, but जरा रुके, इस पॉइंट पर जरा वेट करें. इफ दिस इज टोटल एनर्जी, आपके पास कोई टोटल एनर्जी की हाफ वैल्यू भी आ रही होगी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये टोटल एनर्जी है तो हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी वुड बी राइट इन द मिड वे, यहां पे. आई एम लेबलिंग दिस पॉइंट एज ET टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2. लेट्स अज्यूम कि आपके पास जो टोटल एनर्जी है, लेट्स अज्यूम कि उसकी वैल्यू है 24 जूल्स. तो हाफ ऑफ टोटल एनर्जी इज 24 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 12 जूल्स. तो ये 12 जूल्स वाला पॉइंट, ठीक है. इस पॉइंट के ऊपर मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो एक सर्टेन पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी. सो बेसिकली दीज आर द पॉइंट जिस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल है. सो बेसिकली यू हैव
5 guided points to sketch your एनर्जी ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एग्जाम में भी आपने इसका ख्याल रखना है कि एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट पे ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है, आपने उसको मार्क करना है और आपके पॉइंट्स उस लाइन से पास होने चाहिए। नाउ यू विल टेक द हेल्प ऑफ a curved line to draw a parabolic shape once again, and this is the graph of potential energy, right? So you have a graph of kinetic energy which is a parabolic shape, you have a graph of potential energy which is once again a parabolic shape, ठीक है, and you have a graph of total energy which is constant throughout, ठीक है। What is the equation of kinetic energy? Kinetic energy is equal to half m omega square x naught square minus x square, and the value of potential energy is half m omega square x square, right? So you have to memorize the graph of kinetic energy, potential energy and total energy. At least in graphs की shape आपके mind में होनी चाहिए। Now जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि पॉइंट A के ऊपर और पॉइंट B के ऊपर kinetic energy is equal to potential energy and both of them are equal to half of total energy। जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, लेट्स अज्यूम कि टोटल एनर्जी इज 24 जूल्स, तो एग्जैक्टली हाफ काइनेटिक एनर्जी और एग्जैक्टली हाफ पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। 12 जूल्स ही काइनेटिक एनर्जी होगी और 12 जूल्स ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो एट विच डिस्प्लेसमेंट दिस इज टेकिंग प्लेस? अगर हम ये डिस्प्लेसमेंट देखें, व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट? इज इट halfway down there? ठीक है। What is this displacement in terms of x naught? अगर halfway होती तो ये आपका पॉइंट शायद यहां पर आता। इट सीम्स कि ये halfway से डिस्प्लेसमेंट थोड़ी सी ज्यादा है, राइट? सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ x नॉट। आपको कोई कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, कोई फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आई विल हेल्प यू हेयर। आप जैसा कि इस पॉइंट पर देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो आप इन दोनों फॉर्मूलाज को इक्वेट कर सकते हैं। लाइक काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू potential energy which is half m omega square x square, right? दोनों साइड पे हाफ m omega square हाफ m omega square से कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। You are left with x naught square is equal to 2x square. X square is equal to x naught square divided by 2. Take under root on both sides and this displacement is coming out to be x naught by under root 2, right? 1 over under root 2 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें। 1 divided by under root 2 is 0.707 x naught, right? So this is taking place at 0.707 of maximum displacement x naught, ठीक है। at this point x is equal to 0.707 x naught, so almost 70.7% of its displacement पे काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल होती है पोटेंशियल एनर्जी के, राइट? सो लेट्स ड्रॉ वन अदर ग्राफ। यू आर राइटिंग energies time graph, energies time graph, ठीक है। once again you have to plot a graph of kinetic energy, potential energy as well as total energy. So you have to draw a graph of kinetic energy, potential energy and total energy at least over one time period, ठीक है। so basically इसके आप एक्सेस लेबल करेंगे।
So the quantity along y-axis is energy once again, energy in joules, and quantity along x-axis is once again the value of time in seconds. Let's draw the graph over at least one time period. ठीक है, इस पॉइंट पर जो आपका टाइम है वो 0 है. Here time is capital T by 4, that is quarter of a time period. At this point time is half of a time period. इस पॉइंट पर टाइम इज 3/4 ऑफ अ टाइम पीरियड, और इस पॉइंट पे आपका एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया. ठीक है, वी आर अज्यूमिंग कि एट t इज इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट इट्स मीन पोजीशन. ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट इट्स मीन पोजीशन. तो अगर ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर प्रेजेंट है तो इसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 होगी. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. दिस इज अ पॉइंट ऑफ टोटल एनर्जी. ठीक है, ये मैक्सिमम एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है, ये थ्रू आउट द ऑसिलेशन कांस्टेंट रहेगी बिकॉज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन. ठीक है, सो सबसे पहले जो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं दैट वुड बी अ ग्राफ ऑफ टोटल एनर्जी. सो दिस विल बी डेफिनेटली अ हॉरिजॉन्टल लाइन बिकॉज टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट. ठीक है, थ्रू आउट द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट. हम अज्यूम कर रहे हैं कि एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट थ्रू आउट, द टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट. नाउ वी हैव टू स्केच अ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी and potential energies variation with respect to time. So if the object is initially at mean position पर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है? मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है. सो काइनेटिक एनर्जी का पॉइंट यहां पर आएगा. आफ्टर क्वार्टर ऑफ अ टाइम पीरियड ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पर चला जाएगा. दूसरी एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी वुड बी 0. half time period में it will return back to mean position, kinetic energy will be maximum. 3/4 of a time period में it will be at the other extreme. other extreme पर kinetic energy दोबारा से 0 होगी because extreme पर turning point होता है, and at one time period it will return back to its mean position, so it will have maximum kinetic energy. So we have these guided points to draw to sketch a graph of kinetic energy. 1, 2, 3, 4 and 5 points. Have a look कि मैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करता हूं. ठीक है, दिस इज द वेरिएशन. ठीक है, इस कर्व को ड्रॉ करने के लिए शायद आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए हो, लेकिन वो प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे. सो दिस ग्राफ बिलोंग्स टू kinetic energy, right? Or you know that at mean position the value of potential energy is 0. So 0 potential energy, extreme पर maximum potential energy, mean पर दोबारा से 0 potential energy, maximum potential energy और 0 potential energy. ठीक है, once again we have to sketch a graph of potential energy. So the curve will be like this. This is the variation of potential energy. ठीक है, so I will label this graph as potential energy. So this graph is variation of kinetic energy with respect to time, and this blue graph is variation of potential energy with respect to time. लेकिन अगर t is equal to 0 पर आपका पेंडुलम प्रेजेंट होता एक्सट्रीम पोजीशन पर एट टर्निंग पॉइंट, ठीक है, तो उस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 होनी थी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होनी थी. तो ये ग्राफ्स एक्सचेंज हो जाते. जो इस वक्त काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, अगर ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा होता तो वो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होना था. ठीक है, और अगर जो इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है तो एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा होता तो वो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होना था. ठीक है, वो आपसे ये पूछ सकता है कि t इज इक्वल टू 0 पे ये दोनों ग्राफ्स आपको मिले हुए, लेबल्ड हुए, आप बताइए कि ऑब्जेक्ट अपना जर्नी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है या मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है. सो इट टेल्स के एट t इज इक्वल टू 0 योर पोटेंशियल एनर्जी 0,
ठीक है, and your kinetic energy is maximum and that happens at mean position. So यहाँ से confirm हो रहा है कि at t is equal to 0 your pendulum is present at its mean position, right? So there are a lot of graphs लेकिन energy के सिर्फ दो graphs ही हैं. Let's revise those graphs. ठीक है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट से एक्सट्रीम्स पर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल, और मीन पर काइनेटिक एनर्जी. एंड दिस पैराबोलिक ग्राफ्स आर द ग्राफ्स ऑफ एनर्जी एंड द वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. आप ओवर द वन टाइम पीरियड जब आप इसके ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे दे विल लुक समथिंग लाइक दिस, राइट? सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ रेजोनेंस एंड डैम्पिंग. ठीक है, थोड़ी सी रिसर्च करें व्हाट इज रेजोनेंस एंड डैम्पिंग. इन द नेक्स्ट वीडियो we will be seeing the video of resonance, so stay tuned. Thank you.